Morning everyone. Today we will do continue the class from the last chapter, last topic that we are doing over the properties of the fluid, and I have given you a numerical that is related to your specific weight, density, specific gravity. Okay, so you have to find the given value of specific weight, density, or specific gravity. Okay, so that is simple numerical only up you have for the weight. So you can understand how you can do this. Uh, a simple numerical. Okay, so what is the formula and how we can use this formula? So let's see that. So that is calculate the specific weight, density, and specific gravity of 1 liter of liquid which weighs 7 Newton. Okay, so उसमें आपको weight is given, the weight is given, and quantity is 1 liter. So volume is given, that is 1 liter. 1 liter is equal to 1/1000 meter cube. So liter को आप मीटर क्यूब में किस तरह लिख सकते हैं? 1/1000 meter cube. So this unit you have to be remember how, because these are basic unit, and if you are talking about fluid mechanics, so generally आपको जो fluid का unit है वो liter में मिलेगा, but if you can convert that volume into meter cube, so dividing by 1000 you can convert into meter cube. So 1 liter is equal to, please note down this thing, so this is important for you, because 1 liter is equal to 1000 meter cube. ठीक है, 1/1000 meter cube, और 1 liter is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरह हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, सो वेट इज गिवन. ओके, देन स्पेसिफिक वेट, हमें स्पेसिफिक वेट निकालना है. सो स्पेसिफिक वेट क्या था? W. वो क्या होता है हमारा? वेट अपॉन वॉल्यूम. सो वेट इज गिवन 7 न्यूटन, वॉल्यूम इज गिवन 1 liter. So 1 liter को आप लिख सकते हो 1/1000 meter cube. So it will be 7000 Newton per meter cube. That is the unit of specific gravity. अब इसको इस तरह निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? डेंसिटी. तो डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोलते हैं. ठीक है, तो 7000 वेट तो मेरे पास हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 7000 अपॉन 9.81, दैट इज द वैल्यू ऑफ G. ठीक है, so you can calculate it. So this is kg per meter cube. Okay, so then this is the value 713 kg per meter cube. Specific gravity, if we find the specific gravity, तो हमें जो जिस fluid की निकालनी है डिवाइड बाई स्टैंडर्ड फ्लूइड है. So that is water. So density हमने निकाली ये है. So it may be any fluid. So density of liquid अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर फ्लूइड की लिक्विड हमारे पास ये आ गई, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी दी 1000. ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.7135. दिस इज आंसर, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो दीज आर द सिंपल न्यूमेरिकल. यू कैन कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल वेरी इजीली. ओके, ट्राई टू डू प्रैक्टिस. Some other example are also given, so you can do it at home. Calculate the density, specific gravity, specific weight or weight of the 1 liter of petrol, or specific gravity is given. So वही चेंज है, थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने. आपको ये होमवर्क है, आप इसको करिएगा. Then next property. The next property is viscosity. Viscosity क्या होता है? Viscosity is defined as the property of a fluid which offer resistance to movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid. So just generally we are talking about viscosity. So आपने देखा होगा कि एक अगर वाटर को फ्लो करने का देखें, वाटर अगर पानी नीचे गिराते हैं, ठीक है, और वहीं पे हम कोई तेल ले लेते हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, ठीक है, उसको नीचे गिराते हो, तो दोनों अब एक जगह सेम प्लेस पे गिरा रहे हो, ठीक है, बट आप देखोगे कि जो डिस्टेंस कवर करेगा ज्यादा पानी, वो लिक्विड, वो कौन सा होगा? वाटर. बिकॉज डेंसिटी जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, कोहेसिव फोर्सिव बॉन्डिंग है, वो कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारे ऑयल है. ऑयल में कोहेसिव फोर्सिव ज्यादा होती है. सो दैट इज क्या है? वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें? मूवमेंट में. जो फ्लो है फ्लूइड मूवमेंट में, वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. बिकॉज मैंने आपको बताया कि जैसे आप ये सरफेस है, एज यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ ओवर हियर एट बॉटम ऑफ दिस सरफेस,
This is surface, the fluid is flowing over here. Okay, so what happened? Excuse me. Because यहाँ पे जो fluid है that is come in contact with the surface and up जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, so what happen, the other layer will come in contact with their number of layers, so it will come in contact with the fluid. So with that you can see you at the top of the layer, जैसे जो free surface है, you will find the maximum velocity at the top of the surface. But जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे at the यहाँ पे सरफेस से तुम्हारा लिक्विड टच कर रहा है, वहां पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0. सो एज यू कैन सी द ग्राफ ओवर हियर, द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज डिक्रीजिंग इन वाई डायरेक्शन. सो अगर हम वाई डायरेक्शन में ऊपर अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो इट इज इंक्रीजिंग विद योर सरफेस थिकनेस इंक्रीजिंग. ठीक है, बट जैसे जैसे तुम्हारा वाई इंक्रीज करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी एंड will in maximum at free surface. So when two layer of the fluid distance dy apart move one over the other at different velocity, say u or u plus du, that you can see these are two different velocity. यहाँ पे पहले u था तो यहाँ पे ऊपर कितनी हुई u plus du. जैसे dy मूव किया, मीन स्मॉल डिस्टेंस मूव किया, इसकी वेलोसिटी भी स्मॉल से इंक्रीज होगी. सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे y पे कितनी थी, u थी. जैसे उसने dy मूव किया, स्मॉल डिस्टेंस मूव किया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u plus du, इंक्रीज हो गया वेलोसिटी में, विस्कोसिटी में, वेलोसिटी में इंक्रीज होगी. u इज जनरली वेलोसिटी ओवर हियर, दिस इज वेलोसिटी. ठीक है, सो द विस्कोसिटी टुगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी कॉज अ शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द fluid layers. Generally मैंने बताया ना कि ये fluid layers, if you're talking two layers, so it is a retardation force. So जैसे जैसे यहाँ पे number of layer, because यहाँ पे अगर बात करें तो ऊपर भी layer है, नीचे भी layer है, तो यहाँ पे velocity कम होगी. तो जब हम free surface की बात करें तो ऊपर कोई layer नहीं है, ऊपर हमारा atmosphere है, but नीचे layer है, तो क्या होगा, सबसे maximum velocity जो हमें मिलेगी वो upper free surface के ऊपर मिलेगी. Okay, so the top layer can causes a shear stress on the adjacent lower layer, while the lower layer causes shear stress on the adjacent top layer. Okay, ठीक है, दोनों लेयर एक दूसरे के बस shear stress लगा रही है, नीचे वाली ऊपर लगा रही है, ऊपर वाली नीचे लगा रही है. So that is the thing that I'm going to explain in previous topic. ठीक है, कि हमने किस तरह इसको जो shear stress है किस तरह हम इसको देख रहे हैं. So this shear stress is proportional to rate of change of velocity with respect to y, जो हमारी डिस्टेंस है, जैसे हाइट इसमें बोलते हैं वर्टिकली मूव कर रहे हैं, एंड नोटेड बाय सिंबल टाउ. ठीक है, इसको हम टाउ से अपने नोट कर लेना सिंबल. टाउ इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड टाउ. ओके, इसको जनरली शियर स्ट्रेस से नोट, शियर स्ट्रेस को नोट करते हैं. सो mathematically, if we're talking about mathematically, the tau shear stress is directly proportional to change in velocity. U is velocity with respect to distance dy, जो distance के respective change आ रहा है velocity में, so that is why. and जब अब इस proportionality sign को हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक constant आएगा. ठीक है, mu, that is जब इक्वल, इसको हम इक्वल कराने के लिए हम क्या आएंगे, constant लगाएंगे, proportionality constant, that is called mu. इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं. म्यू इज कॉल्ड, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, और जनरली विस्कोसिटी बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो du upon dy है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो इसको जनरली हम एक नाम और देते हैं du upon dy को, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. जनरली ये टर्म हम यूज भी करेंगे आगे वेलोसिटी ग्रेडियंट का. सो जनरली आपने इस चीज को याद रखना है कि जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हमारी डिस्टेंस है या डिस्टेंस है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको हम जनरली बोलते हैं शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन. सो म्यू इज जनरली इक्वल टू, दैट इज टाउ अपॉन चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, thus viscosity is defined as shear stress required to produce unit rate of shear strain. तो उसको shear strain भी बोलते हैं. ठीक है, rate of shear strain, velocity shear deformation बोलते हैं, shear strain भी बोलते हैं. So
जो अगर विस्कोसिटी को हमें डिफाइन करना हो तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द shear stress required to produce unit rate of shear strain. I hope you are clearing. You have cleared this thing. Okay, so we will move further. These formulas are important for examination point of view. So please, examination as well as gate preparation. If you are going to be preparing the gate examination, so these small formulas and these small definitions will help you to score single जो 1 point marks हैं, और generally जो हमारे पास question आते हैं generally objective type. So these question generally ask. बिकॉज अभी तो थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो गया है, क्योंकि जनरली ये हमारे रिलेशन पे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू पीपल हैव टू रिमेंबर, मेक अ नोट्स दैट दीज फार्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, और प्लीज नोट डाउन दीज फार्मूलाज ऑन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ विस्कोसिटी. सो जनरली आपने अब पीछे आपने देखा फार्मूला, that is mu is equal to shear stress upon generally you can say shear stress upon velocity gradient. ठीक है, so velocity gradient क्या था, change in velocity to change in distance. ठीक है, so हमने यही लिया यहाँ पे. shear stress क्या होता है, that is force upon area, that is shear stress. change in velocity, that is velocity क्या होती है, length upon time, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, so length in meter, time is second, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड. ठीक है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, so 1/length. तो इसको हमने बाइफ्रिकेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ताकि हमें यूनिट निकालना इजी हो जाए. तो आप भी इस चीज को खुद निकाल सकते हो. इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला कि हाँ जी हमारे यूनिट क्या आएंगे, तो जनरली आप फॉर्मूला लिखिए. यू कैन राइट shear stress upon changing velocity upon distance, because these are small units, so we can remember them these units very easily. और shear stress तो हमें पता ही है कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड योर shear stress. सो फोर्स या देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो अगर एरिया की बात करें तो लेंथ, एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है. सो फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर, यहाँ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/टाइम. ओके, सो लेंथ नीचे आ जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, सो बिकॉज इट्स ऑल्सो नीचे. ठीक है, सो यहाँ क्या बन जाएगा, फोर्स इनटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर. सो जनरली फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं, न्यूटन, टाइम को सेकेंड, और लेंथ को मीटर. सो द यूनिट विल बी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. So this is the unit of your this will be your unit of your you can say viscosity. Okay. Excuse me. सो उसके बाद आता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ओके, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है. सो इफ वी टॉकिंग अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सो इट्स विस्कोसिटी जो हमारी हमने पीछे विस्कोसिटी फाइंड आउट की, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, अपॉन डेंसिटी. सो you can say it is defined as a ratio of dynamic viscosity, a simple viscosity, ठीक है, and density of the fluid, or density of the fluid. So it is denoted by Greek symbol mu, called mu, इसको जनरली न्यू बोलते हैं. ठीक है, म्यू दूसरा, इसको न्यू बोलते हैं. सो आपने इसका सिंबल भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है. सो बिकॉज एग्जामिनेशन में आप लोगों को सिंबल नहीं पता होता, इसके नाम नहीं पता होते हैं. ठीक है, तो वाइवा में जनरली आपसे पूछा था क्वेश्चन, सो यू विल नॉट एवर बी अवेयर द थिंग्स कि हाँ जी ये क्या है. सो दिस इज योर विस्कोसिटी. सो विस्कोसिटी क्या होती है, म्यू है, म्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी. सो जनरली इसकी अगर यूनिट बात करें, सो हमने पीछे निकाले थे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, डेंसिटी के हमने निकाले थे, तो उसकी जनरली हमारी यूनिट क्या बनेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके,
So now next is Newton law of viscosity. This is also important question formula. Sorry, questions. Newton, what is Newton law of viscosity? So आपने ये भी फॉर्म मतलब इसको याद रखना है. जो अभी तक मैंने डेफिनेशन करवाई है, जो प्रॉपर्टीज हैं, these are important for 2 marks in point examination point of view of PTU. Okay, so ये PTU के point of view से 2 marks में important है. So आप ये चीजें प्लीज ध्यान से रीड करिए, because these are the basic, and if you not clearing the basic, then these will create problem in your further your study when you are going to for next lectures, yeah, next topics. So if you are clearing, if you have clear these doubts, then the next topics are easier to you. So Newton's law, what it states, that it states that shear stress on a fluid element layer is directly proportional to rate of shear strain. Okay, so the जो हमारी यू कैन से जो shear stress है on a fluid element, किसी fluid element के ऊपर जो shear stress लग रही है वो क्या है, directly proportional to rate of shear strain. So the constant of proportionality is called coefficient of viscosity. Okay, and it is expressed as, जो हमने पीछे जो टर्म ली थी इक्वेशन, जस्ट अ मिनट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं. दिस इज योर न्यूटन्स लॉ, दिस इज न्यूटन्स लॉ, जनरली इसको न्यूटन लॉ से बोलते हैं. सो दिस इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, जो मैंने पीछे देखा है. ठीक है, सो दिस इज योर टाउ, जो शियर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन. दैट इज टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du upon dy. ओके, सो जब हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, हम म्यू लगा देंगे. दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी इसको बोलते हैं. So fluid which obey the above relation is known as Newtonian fluid. This is also 2 marks in question for as definition, Newtonian and non-Newtonian fluid. So it's a simple thing कि जो fluid Newton's law को obey कर रहे हैं उनको बोलेंगे Newtonian fluids, and the fluids which do not obey the above relation is called non-Newtonian fluids. ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर का विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो दैट वी विल सी. टेम्परेचर इफेक्ट द विस्कोसिटी, दैट इज श्योर. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर, आप किसी चीज को हीट करोगे उसकी विस्कोसिटी में चेंज आता जाएगा. सो द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो लिक्विड में क्या होती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है. लाइक आपका इसका एग्जांपल देते हैं, आपका घरों में जनरली पानी गर्म करते हो. ठीक है, सो क्या होगा कि आप देखते हो कि जब आपने अगर इमल्शन रॉड से पानी गर्म कर रहे हैं तो आपने कभी चेक किया होगा तो क्या देखा होगा कि जो हॉट वाटर है वो ऊपर ऊपर आ जाता है. ठीक है, और आप ऊपर चेक करते हो आपको लगता है कि हॉट वाटर है, बट सम टाइम आप नीचे चेक करते हो, बाहर नीचे चेक करते हो, आपको लगता है नीचे पानी ठंडा है. बट इज दैट इज नथिंग बट आपका विस्कोसिटी चेंज हो रहा है. जब हीट होता है, आपको पता है कि लाइट इन नेचर, जो अगर हमारी जब हीटिंग करते हैं तो हमारी जो उसमें विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और वो लाइट इन नेचर हो जाता है, तो वो ऊपर उड़ जाता है. ठीक है, एंड जो कोल्ड फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे आ जाता है. जनरली वेट के रिस्पेक्टिव में बात करते हैं तो वो नीचे आ जाता है. ठीक है, सो द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाइल विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये दोनों अपोजिट है. ठीक है, गैसेस में क्या होता है, इंक्रीज होती है, लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है. So thus this is due to the reason that viscous forces in a fluid are due to cohesive forces. ठीक है, जो हमारी फ्लूइड में क्या होती है, जो विस्कस फोर्सेस होती हैं वो ड्यू टू cohesive forces, कोहेजन की वजह से कि दोनों अट्रैक्ट है दूसरे की तरफ. एंड मॉलिक्यूल में जो हमारी गैसेस में होता है उसमें मॉलिक्यूलर मोमेंटम के ऊपर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे मूवमेंट किस तरह कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम. So in liquid, the cohesive forces predominate the molecular momentum transfer due to closely packed molecule and with the increase in the temperature. So क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें क्या होगा, जो जैसे हम किसी भी को हीट अप करेंगे तो क्या होगा, जो cohesive forces हैं वो predominate कर देंगी जो molecular momentum है. So due to closely packing of molecules with the increase in temperature. So
द coercive forces decreases with result of decreasing viscosity। तो उससे क्या होगा कि जो जिससे क्या होगा, जो coercive forces हैं डिक्रीज कर जाएंगी, एंड उससे क्या होगा कि जो विस्कोसिटी है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। But in case of gases, the coercive forces are small and molecular momentum predominates। तो जो हमारी गैसेस होती हैं उसमें क्या होता है कि जो coercive forces होती हैं, बिकॉज आपको पता है कि गैस ओपन ओपन एटमॉस्फेयर में रहती है, तो उसमें coercive forces का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो coercive forces क्या करती हैं, तो are small and predominates molecular momentum transfer मोमेंटम ट्रांसफर प्रोडोमिनेट्स। तो जो मोलिकुलर मोमेंटम उसको प्रीडोमिनेट कर रहता है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस। मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगी, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा, एंड विस्कोसिटी में क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। So the relation between viscosity and temperature for liquid and gases are given. So these are the formulas. You can remember these formulas. ठीक है? So for liquid, हम viscosity generally इस तरह निकाल सकते हैं. So that is mu naught upon mu naught into 1 upon 1 plus alpha t plus beta t square. So mu क्या है, viscosity of liquid at 1 t degree temperature, ठीक है, in poise क्या होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपने इसको याद रखना है, poise का जनरली आपको यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि poise भी यूनिट है हमारा viscosity का, ठीक है। एंड म्यू नॉट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये टी डिग्री पे है, मीन कोई टेम्परेचर हो सकता है, अभी किस पे 0 डिग्री के ऊपर विस्कोसिटी जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो पॉइस। एंड अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा जनरली कांस्टेंट फॉर द लिक्विड, बिल्कुल कांस्टेंट होंगे लिक्विड के रिस्पेक्टिव, ठीक है। सो फॉर इन केस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो दिस द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एट 0 डिग्री ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री इज, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 1.79 इंटू 10⁻³ पॉइज, ठीक है। सो ये वाटर की हमारी क्या है, विस्कोसिटी है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड अल्फा की वैल्यू 0.03368 एंड बीटा की वैल्यू है 0.000221। ओके, सेम इसमें थोड़ी जब गैसेस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। सो सेम वही है फॉर एयर की केस, बिकॉज एयर टेकन एज स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, वाटर इज आल्सो स्टैंडर्ड फ्लूइड। सो एयर के केस में म्यू नॉट की वैल्यू इज 0.0017 एंड अल्फा की वैल्यू है 0.7 टाइम्स 056 एंड बीटा की वैल्यू आएगी 0.1189 टू 10⁻⁹ so these are the values you must remember for the case of liquid or in case of gases। उसके बाद है टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, हमने पहले थोड़ा सा एक दो टाइप्स पहले भी रीड किए हैं, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। सो अब आगे रियल पर्टिकुलरली टाइप्स की, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सो आइडियल फ्लूइड होता है एंड रियल फ्लूइड होता है। सो आइडियल फ्लूइड क्या है, आपको ये डेफिनेशन भी 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, आइडियल, रियल, न्यूटोनियन, सो सारी 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक द नोट्स ऑफ these definitions, okay, so that definition is also given in your book, or you can take it from online notes as well, okay, so you can also note down from here also। So if you're talking about ideal fluid, a fluid which is compressible and having no viscosity is known as ideal fluid, okay। ऐसा fluid जिसको जो incompressible हो, ठीक है, which is incompressible and having no viscosity, और उसकी उस पर कोई viscosity ना हो, that is called ideal fluid। So ideal fluid is only an imaginary fluid। तो ये एक imaginary fluid है, actual में ये feasible नहीं है, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे फ्लूइड पाए जाते हैं, दे हैविंग सम विस्कोसिटी, कुछ ना कुछ उनकी विस्कोसिटी होगी, ठीक है। उसके बाद है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड जनरली बात करते हैं विस्कोसिटी, ओके, जो उसका अपोजिट है आइडियल का, ठीक है। आइडियल मीन
जो हमारा आइडिया में ही है, ठीक है, जो इमेजिनरी थिंग है, रियल मीन जो एक्चुअल में है, ठीक है। सो फ्लूइड विच possesses viscosity is known as real fluid. So all the fluids in actual practice are real fluids. अब आ गया न्यूटोनियन फ्लूइड। सो रियल फ्लूइड इन विच द shear stress is directly proportional to rate of shear strain, ठीक है, इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। सिंपल सी बात आप ले सकते हैं कि जो विच फॉलो न्यूटन लॉ, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड डजंट ओवे, वही है डेफिनेशन लिखे न्यूटन लॉ के। सो दैट इज क्लियर टू यू। उसका था आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। So a fluid which shear stress is more than yield value and shear stress is proportional to rate of shear strain is known as ideal plastic fluid. So as a fluid which having shear stress more than the yield value, जिसकी yield value से ज़्यादा shear stress है, ठीक है, and proportional to rate of shear strain, and जो हमारे shear strain के proportional है, ठीक है, और velocity gradient is known as ideal plastic fluid. So this is some type of fluids are given. ठीक है, these are ideal fluids, Newtonian fluid, non-Newtonian fluid, ideal plastic fluids, and ideal solid. So this is the graph between your shear stress and velocity gradient. So उसके रिस्पेक्टिव आगे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, that you can see, that is if the velocity distribution over a plate is given by this u minus equal to 2 by 3 y minus y square, in which u is in which u is velocity in meter per second at the distance y meter above the plate. So determine the shear stress at y equal to 0 and y equal to 0.15 meter. Take dynamic viscosity of the fluid as 8.6 pi, 863 pi. Okay, this is the numerical. So the solution for this you can see. So u is equal to 2 by 3, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2 by 3 ये, ठीक है। सो हमने क्या निकालना है, सो डी यू अपॉन डी वाई हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सो डी यू अपॉन डी वाई, तो जब डिफरेंशिएट किया तो क्या बच गया, 2/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो वाई के रिस्पेक्टिव 1, सो वाई स्क्वायर का क्या बन गया 2y, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2/3 की वैल्यू रह जाएगी, y की 0 तो ये 0 बन जाएगा, तो वैल्यू होगी 2/3। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y एट डिस्टेंस y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस। अब दूसरे का पूछा है इन्होंने एट डिस्टेंस 0.15, सो 0.15 वैल्यू पुट की वहीं पे, इसकी यहाँ पे y की वैल्यू पुट की, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.367। सो वैल्यू म्यू इज इन पॉइस, सो पॉइस को हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे यूनिट में, तो डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 8.63 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम बात करें shear स्ट्रेस की, सो एट अगर दो पॉइंट में निकालेंगे, 0 पे या 0.15 के ऊपर, तो टाउ नॉट इज इक्वल टू, जब वैल्यू y की वैल्यू 0 है, देन u इंटू डी यू अपॉन डी वाई एट वाई इक्वल टू 0। सो विस्कोसिटी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से निकाल ली है 8.63 मल्टीप्लाई बाई डी यू अपॉन डी वाई, आपने यह निकाला हुआ है एट 0.0 के ऊपर, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज योर shear स्ट्रेस एट y इक्वल टू 0 पॉइंट पे, ठीक है, y की जब y की डिस्टेंस 0 पे है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगर हम बात करें 0.15 पे तो क्या होगा 15 के रिस्पेक्टिव, तो विस्कोसिटी विल बी सेम, u की वैल्यू दिस विल बी सेम, बट हमने यहाँ पे इसके लेंगे डी यू अपॉन डी वाई एट 0.15, तो यहाँ पे 0.15 वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी जो विस्कोसिटी है जब y की डिस्टेंस जैसे कि मतलब बॉटम पे जब 0 होगी तो क्या होगी, मैक्सिमम shear स्ट्रेस लगेगी, और जब हम ऊपर जाएंगे तो shear स्ट्रेस कम होती जाएगी। This is the numerical, ठीक है। So you can do this numerical at home. Okay, solution is also maintained. So these are the you can say practice numerical that you can
डू प्रैक्टिस एट होम. ओके, सो आप इनकी प्रैक्टिस करिए घर पे. तो उसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जनरली फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड ऑफ गैसेस. ओके, सो जो फ्लूइड है वो हमारा जनरली लिक्विड हो सकता है या गैसेस हो गए, ठीक है. बट गैसेस आर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, hence thermal properties play an important role. Okay, because gases are compressible, जो जब compression होता है तो there are thermal properties that will come in exist. Okay, so we will study the thermal properties. So with the change in pressure and temperature, the gases undergo large variation in density. तो जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन करेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारी गैसेज है, ठीक है, उसमें बहुत सारा चेंज आएगा उसकी वेरिएशन डेंसिटी में, ठीक है. सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है. सो जनरली हमें पता है कि पी वी इक्वल टू आर टी होता है. सो वॉल्यूम जनरली वी क्या है हमारा, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है. दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक वी को हम उल्टा ए बना के यहाँ पे वी के नीचे पेट में काट कर, ठीक है. तो उसमें मतलब है कि हम इसमें मास नहीं हमने रिमूव करते, स्पेसिफिक मीन डिवाइड बाय मास. So it is the relation that P upon rho equal to RT. Okay, so just the value is given. P is absolute pressure. This is specific volume. This R is gas constant. T is absolute temperature, and rho is the density. So the value of R is 287 joule per kg Kelvin. Okay. तो आपको ये याद रखना है. थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है. आइसोथर्मल आपको पता ही है, ठीक है. द प्रोसेस ये आपने पढ़ा होगा, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये आप पढ़ेंगे. आप जो आपका एटी का चैप्टर है उसमें आप ये सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ठीक है. आइसोथर्मल मीन जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है. एंड जो आइडियाबैटिक है उसमें क्या होता है कि चेंज इन डेंसिटी अकर विद नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम द गैसेस इज कॉल्ड योर एडियाबैटिक प्रोसेस. सो उसमें ना हीट जाती है ना हीट गेन करती है, ठीक है. ना हीट नॉट लूज द हीट, नॉट गेन द हीट, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. सो पी वी, ठीक है. सो दिस आर द रिलेशंस. सो आपको ये वैल्यू याद रखनी है. यहाँ पे के दिया हुआ है, यहाँ जनरली आर लेते हैं, ठीक है. पी वी गामा या आर होता है या एन होता है, गामा या एन होता है, ठीक है. सो एन की वैल्यू, गामा की वैल्यू होती है 1.4. उन्होंने के लिया हुआ है. कंप्रेसिबिलिटी एंड वर्क मॉडुलस, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी एंड वर्क मॉडुलस कहते हैं. कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, क्या है रेसिप्रोकल किसका है हमारा, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हिच इज के. ओके, एंड which is defined as the ratio of compressive stress to volumetric strain. Okay, the ratio of किसका है, compressive stress to volumetric strain. So consider a cylinder. Let's see this cylinder. Okay, this is a piston cylinder arrangement. So consider a cylinder fitted with piston. ठीक है. That V is the volume of the gas enclosed in the cylinder, and P is the pressure of the gas when volume is V. Okay. So let the pressure is increased to P plus dP. We are increasing some pressure over here. So क्या होगा उससे, the volume of gas decreases for V to V minus dV. ओके, उससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया. पहले वॉल्यूम कितना था, V था. जैसे आपने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा P प्लस dP, इसमें थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया, तो क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम यहाँ पे पहुंच गया ये पिस्टन. तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग. सो हमारा डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस dV. ओके, सो देन इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू dP एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी dV. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हुआ, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो आएगा माइनस dV अपॉन dV, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम कितना, माइनस dV आएगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, माइनस शो मीन नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, सो dV अपॉन
dV upon V, ठीक है, change in volume per unit original volume, that is called volumetric strain. So the negative sign decreases the decreasing in pressure, ठीक है, yes, means volume decreases with increase in pressure. So mean ये तुम्हारा decrease show कर negative sign, nothing was showing, it's showing the decrease. So bulk modulus K is increase in pressure upon volumetric strain. So dB upon minus dV upon dV. So it will be minus dB dP upon dV into V. So compressibility is given by 1 upon K. जो compressibility है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ योर बल्क मॉडुलस. उसका आता है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी. Surface tension is defined as the tensile force acting on a surface of the fluid in contact with gases or the surface between two immiscible liquids such that the contact surface behave like a membrane under tension. So generally आप लोगों ने कोई भी liquid देखा होगा, ठीक है, तो आप लोग जनरली देखते हो कि समटाइम हम अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव में कोई लाइट ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो वाटर में फ्लोट करने लग पड़ती है, ठीक है. जैसे हम उसका थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, वो सिंक करना स्टार्ट कर देती है. लाइक लीफ डालते हैं, ठीक है, कोई लीफ डाल रहे हैं या एक स्टोन डाल रहे हैं तो स्टोन क्या करेगा, बिकॉज स्टोन है सम वेट. अगर हम वही अगर बात करें सैंड पार्टिकल की, बस सैंड पार्टिकल स्टार्ट फ्लोटिंग समटाइम, ठीक है, बिकॉज दे आर लाइट इन नेचर. सो वही है कि वो लाइट जो फ्लोट कर रहे हैं वो किस चीज के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. सो देयर इज सम मेम्ब्रेन, ओके, वाटर प्रोड्यूसिंग सम मेम्ब्रेन. आप देख सकते हो मेम्ब्रेन को किस तरह, जब आप ग्लास ऑफ वाटर फिल करते हो तो आप देखते हो कि ऊपर जो टॉप लेयर है वहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बबल टाइप बना हुआ है, ठीक है. वाइट अब आप कैसा कर सकते हैं, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, एक कांच का गिलास लीजिए, ठीक है, और उसमें क्या करिए, उस गिलास में आप उस कंटेनर में आप क्या करिए, पानी भर दीजिए, तो आप उसको साइड देखिए तो यू फील लाइक दैट वहां पे कुछ एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मतलब सरफेस, एक सरफेस लगेगा. दैट मेम्ब्रेन इज जस्ट नथिंग बट प्रोड्यूस्ड बाय योर सरफेस टेंशन. So surface tension is defined as tensile force, ठीक है, tensile force acting on the surface of the liquid. कहाँ पे एक्ट करेंगी, सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद द गैसेस. तो गैसेस क्या है, हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ठीक है, और द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल मींस जो एक दूसरे मिक्स ना हो सके, लाइक जो एयर है और हमारे जो वाटर है, ठीक है, एग्जांपल लेके चलना, सच दैट the contact between contact surfaces behave like a membrane under tension. तो वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन लाएंगे. मेम्ब्रेन की तरह लगता है कि आप देखते हो ये पानी में आप फिंगर डालते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे एक लेयर से बन जाती है, तो क्या होता है उसमें टेंशन आ जाती है, उस मेम्ब्रेन को आप तोड़ देते हो, ठीक है. सो उस टेंशन की वजह से वो वाटर जो है मूव करना स्टार्ट होता है, उसमें नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. सो द सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल एट द फ्लूइड सरफेस. सो क्या होगा, क्या होता है, ये सरफेस टेंशन किस वजह से क्रिएट होती है, इज क्रिएटेड ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस. बिकॉज अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस क्या है कि जैसे लाइक आप देखते हो कि पानी में बबल आया था, ठीक है, बबल क्या करता है, जब अंदर होगा तो उसमें क्या करता है कि वो चारों तरफ से वो बबल फैलता क्यों नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जितनी हमारी इनसाइड फोर्स लग रही है उतनी हमारी आउटसाइड से फोर्स लग रही है. तो दैट इज बैलेंस्ड ओवर हियर. पर जब हमारा क्या होता है ऊपर टॉप लेयर पर चला जाता है तो क्या होता है, जो सरफेस है उसको क्या है, एक न्यू इमिसिबल फ्लूइड के साथ उसको इरेक्ट करना पड़ेगा. तो क्या होगा, वहां पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है. सो द मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ द फ्लूइड मास आर सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स दैट अटैच बाय each other equally. Okay, so however molecule along the surface are subjected to net force towards the interior. The apparent physical consequence of this unbalanced forces along the surface is created a hypothetical skin on the membrane, skin or called membrane. I think the diagram is given over here. So like this, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब हमारे क्या है यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्सेस है, ठीक है, तो ये अंदर से तो हॉलो है, बट क्या हो रहा है कि हॉलो होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको अंदर से बाहर से फोर्सेस लग रही है, प्रेशर तो उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, बट
बिकॉज ये फट क्यों नहीं रहा, क्योंकि उतनी फोर्सेस इसके इनसाइड से भी लग रही हैं टू रिटेन द शेप। सो these forces are called tensile forces, ठीक है। तो सो ये क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल, जब ये देखो ये बीच में है तो यहाँ पे क्या होगा, चारों डायरेक्शन से इसको लग रही है, बट जब ये टॉप लेयर पे जाएगा तो उसमें अनबैलेंस हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक और चीज आती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। So the tensile forces may be considered by being acting on the plane of the surface along any line of surface. So ये जो surface है ये एक्ट करना लगेगा एक लेयर मेम्ब्रेन की तरफ है, तो एक मेम्ब्रेन बन जाती है यहाँ पे। The intensity of the molecule attraction per unit long length along the line of surface is called surface tension. We can say that the intensity of molecular attraction, okay, per unit length along the line of surface. तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इस तरह सेम प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्शन इन यू कैन से अब यूनिट लेंथ के रिस्पेक्टिव बात करें, ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन को जनरली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज सिग्मा, ठीक है। अपने ये जनरली इसको नोट करके चलना है कि क्या होता है, इसको स्ट्रेस भी जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरली इसको हम लेंगे सरफेस टेंशन इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सोम के केस में इसकी वैल्यू चेंज हो जाता है, कुछ और होता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम इसको लेंगे सरफेस टेंशन। तो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अपने यूनिट भी याद रखने हैं कि सरफेस टेंशन के यूनिट क्या होते हैं। उसके बाद है कि हम किस तरह इसके फाइंड आउट करेंगे सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट एट एंड बबल। सो ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। सो डेरिवेशन वी विल डू, we will not do over like this। so surface tension की derivation हम खुद कर लेंगे आगे, ठीक है। so we are skipping this part because this is derivation, so I will do it with the writer pen that we will do in next class, okay। so don't worry, we will do that। so surface tension, how we can calculate this and how that we will solve the numerical, these part on this portion we will do in next class। so I'm skipping this portion also because there are some derivations, so these derivations generally we will do with the help of writer pen or in class, so I'm skipping these things, okay। so these numerical we will do in your next coming classes, okay। so these are the main thing जो हमारे syllabus में as per our PTU syllabus, ठीक है, जो हमने अभी तक read करना है, rest is not in your syllabus। so